राजस्थान रॉयल्स के बारे में फिर क्या विचार हैं हमारे, क्या लग रहा है? आई थिंक ये भी वन ऑफ द वेरी गुड स्क्वाड्स आई वुड से, ऑन पेपर। ऑल्दो room for improvement, but I think they also have like too many options top the order, right? But for me, I think the two openers should be Yashasvi Jaiswal and Devdutt Padikkal. That might mean ki Butler comes down, one down, or maybe Butler comes up, Padikkal comes down. But Yashasvi, I definitely want him to open. Devdutt has done amazing job for RCB, so it is a difficult choice for them. But these would be my top three batsmen they can shuffle around. Followed by obviously the captain for the side, Samson. Samson के बाद जो आता है is I think Riyan Parag would continue to get his chances, and he'll remain at 5. But I think Riyan Parag is a what if factor for me. Like, I mean, more than what if, it is a why factor. Ki why? Like, I mean, why is he in the squad? But I think this squad, I think इससे पहले probably because Rajasthan did not have that strength what they have in this squad, right? And maybe he was playing consistently because of that. लेकिन यहाँ पे अब मुझे लग रहा है रियान पराग से शायद शुरू कर ले, शायद नेट्स में ही इज डूइंग वेरी वेल, उसके वजह से दे कीप कंटिन्यूइंग with him in the playing 11, right? But I think they will start with them, but this squad will give them chances to experiment and do a lot of other things. So for me to start with, exactly. probably Parag is 5. I think one very good addition is Hetmeyer, because वो एक finisher का काम करेगा इस squad के लिए, which probably was missing. Tewatia and Chris Morris and ये लोग consistently नहीं चल पा रहे थे. But I think Hetmeyer is better at that position at number 6. तो इसके बाद आते हैं, which is Jimmy Neesham should play according to me, or they could switch between Daryl Mitchell, who is an all-rounder again. So between the two, PR का बंदा भी चाहिए, तो Neesham is good PR. Yes. हाँ डेफिनेटली। ट्वीट पे तो वो एक्टिव ही रहता है भाई। वसीम जाफर के बाद नीशम है। तो आई थिंक नीशम के बाद अपने मिस्टर अश्विन के बाद बोल्ट। आई थिंक बोल्ट के बाद वी हैव आर यूजी चाहल इन द साइड, एंड अगेन दे हैव वेरी गुड इंडियन पेसर्स इन देयर बिटवीन सैनी एंड प्रसिद्ध कृष्णा. So with this squad that I just said, one of them will play. But like I said, उनके पास बहुत रूम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. If they want to change and get an extra batter, और पराग नहीं चल रहा है, they can play both Saini and Prasidh. They can even sit out Bolt, which probably might not be a good idea, but they can take that chance, right? एक स्पिनर को बैठा सकते हैं between Chahal and Ashwin also, and they can play Van der Dussen or Mitchell again. So I think squad is very good. I think a lot of room for experiment, and one weak side that I see here is Samson की leadership, right? Skills again. छोड़ दो उसको यार। हाँ तो जी लेने दो उसको। नहीं मतलब यार, अब वही मुझे एक इस साइड में से, इस स्क्वाड में से एक वीक पॉइंट निकालना है, तो वो उसकी लीडरशिप स्किल है। बाकी I don't see anything anywhere. If this same squad probably, let's say, had a prominent leader like a Sharma or a Dhoni or a Kohli, right? Then probably it would have been a different story, right? This squad is very strong. If you compare this with the Bangalore squad, which probably had a very good captain over the years, then वहाँ पे leadership skill है लेकिन player नहीं है. यहाँ पे players आ रहे हैं. Probably I think they might lack in the leadership, because if you remember, राजस्थान का ही मैं example दूँ, they won the first IPL, right? हाँ बिल्कुल। with Shane Warne, right? And Ravindra Jadeja. So exactly, if you look at that side, the side itself was not so fancy, but Shane Warne की leadership and the backroom staff and everything, that made it click. So I think that leadership is very very important. हम कितना भी बोल लें कि भाई, और यार करुण नायर को खिला लो यार, 300 मार के नहीं खेला। हाँ, I think वो भी एक एडिशनल ऑप्शन है, राइट? तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दे हैव थिंग्स दैट दे कैन ट्राई. पराग नहीं चल रहा है, करुण नायर इज अनदर ऑप्शन.
that they can try for. ऐसे एकमात्र बैट्समैन होगा कि 300 मार के नेक्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेला वो। सही में यार। और इवन आईपीएल की हिस्ट्री में अगर उठा के देखो तो मेरे ख्याल से वो एकमात्र ऐसा बैट्समैन है हु इज आई थिंक समबडी हु कैन प्ले शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड, लेकिन उसने हर फ्रेंचाइजी जिसमें भी वो रहा है उसका बेंच ही गर्म किया है, बीट पंजाब, बीट बॉम्बे, बीट एनी साइड। एंड नाउ आई फियर कि राजस्थान सेम चीज ना करे उसके साथ। आई थिंक ही इज समबडी विद पोटेंशियल। अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत एज हो गई है, उसको पता नहीं क्यों यार चांस नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से रेयान पराग की जगह करुण नायर को खिलाना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। रेयान पराग ने ऐसे लड्डू लड्डू मैच हरवाए हैं जस्ट बिकॉज आई डोंट नो, यू कांट कीप डूइंग द सेम मिस्टेक्स ऑल ओवर अगेन, ठीक है, और वो करता ही है, सेम चीजें ही करता है वो। आई डोंट गेट इट। But I think age factor is with Riyan Parag, so probably they are just backing him for that. It is like a homegrown He's talent. allowed to do mistakes. Yeah. Young है, करने दो जो कर रहा है, बच्चा है और राजस्थानी छोरा है। आर अश्विन के बारे में कुछ? ना भाई I think R. Ashwin यार के आर बारे में नहीं, अश्विन के but बारे में तो आर अश्विन और इसके बारे में जानने करने का मजा आएगा कि आर अश्विन और बटलर फिर सेम साइड में है, वेरी सिमिलर सिचुएशन लाइक हुड्डा एंड पांड्या सेम साइड में। तो अब देखना होगा कैसे जेल करते हैं ये लोग। आई नो डीडी तो बहुत हाईली रेट करता है आर अश्विन को, मैच विनर है उसके लिए तो आर अश्विन। मैं एक ही चीज से खुश भाई वो। यार वो कनिंग बंदा तो है, मतलब मेरे को लगता है वो जब भी टीम में Shrewd होता है है, हाँ। कुछ ना कुछ तो नई चीज अटेम्प्ट करता ही है। तो but but- प्रॉब्लम यही है कि कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही ट्राई कर लेता है, राइट? That I think sometimes I have seen him कि भाई उसने पूरी एक ओवर लेग स्पिन ही डाली है, वो भूल जाता है वो ऑफ स्पिनर है, वो ऑफ स्पिन करते करते ही इतना बड़ा हुआ है वो उसका प्राइमरी स्किल है। तो I think Yeah, he- no doubt he's one of the best bowlers in Test match cricket, and for that matter, one-day cricket as well. But T20 में पता नहीं क्या हो जाता है उसको यार, just don't get it. मतलब उसके कैलिबर के आदमी को 40 रन नहीं खाने चाहिए, that's it. That's one line statement. मतलब नहीं खा सकते वो 40 रन, इतने एक्सपीरियंस, इतनी सारी वैरायटी सबके बाद, बट कंसिस्टेंटली 2-3 मैच में है यार वैसे इतने रन। नहीं तो उसकी I इकोनॉमी काफी हाई है, डेफिनेटली उसकी आईपीएल इकोनॉमी तो डेफिनेटली हाई है कंपैरिजन वाइज। एंड आई विल एग्री विद रोहित, बट रोहित इज सेइंग आई थिंक ही ट्राइज टू मच, he tries to be so indifferent that I think the batsman doesn't get in a way doesn't get into any problem। आराम से मारते हैं यार उसको, और नए लड़के मारते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो है, नए लड़के भी ठोक देते हैं उसे। बट इसका कामिंग इफेक्ट होगा थोड़ा सैमसन पे, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। हाँ, नहीं जरूरत ही नहीं है, उसको जैसा है उसको वैसे ही रहने दो भाई। वो 10 बॉल भी टिकता है तो एंटरटेनमेंट आ रहा है, that's it। बट भाई एंटरटेनमेंट के है, साथ वैसे तो विन नहीं आता ना। प्रॉब्लम सी आई थिंक ओवर द इयर्स टीम तो एक ही जीतेगी ना। नहीं, बट ऐसा नहीं होता ना डीडी। 40 दिन देखना है तुमको तो भाई एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर। नहीं, ओके, इफ आई लुक एट एनी पास्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सैमसन, एवरीवन इज रेटिंग हिम वेरी हाईली, एंड ये भाई 1 साल की बात, 2 साल की बात नहीं है, 4-5 साल हो गए। वी कैन नॉट कॉल भाई सैमसन। शर्मा जी ने अभी बोला, किसने? हाँ, अब कि- करेक्ट। शर्मा जी ने बोला कि एक एक इनिंग जो वो खेलता है वो अलग ही होता है, मजा आ रहा था देख के उसको। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है, वो एक इनिंग जो है वो बहुत देर के बाद आती है। जो कंसिस्टेंसी फैक्टर है वो नहीं है ना। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो मैच्योरिटी, आई थिंक प्रॉब्ली इज व्हाट मयंक इज सेइंग, दैट कामिंग फैक्टर इफ अश्विन एड्स टू हिम एंड ही कैन ब्रिंग आउट दैट। वो 2 चौके खा के ना ऑल ओवर द प्लेस होता है, वो कामिंग फैक्टर नहीं ला पाएगा, तुम रहने दो। नहीं, जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा हो। तो नहीं, जब बॉलिंग नहीं कर रहा वो बाहर देख, से वो- बिठाएंगे उसको। वो 16 ओवर काम रहेगा यार। हाँ। तुम अदर साइड अदर वे अराउंड भी तो देखो और इनके पास ऐसे बॉलर हैं जो और खाएंगे, क्योंकि यूजी चाहल भी 2-3 छक्के खा के ही विकेट ले रहा है आजकल, सीधा नहीं मिल रहा वो उसे तो भी। शुरुआत से ही उसका रहा है। बट ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छा इनका पिक है। वो स्टील है यार, स्टील है, ट्रेंट पता बोल्ट नहीं। इन्होंने स्टील किया है, स्टील है। ट्रेंट बोल्ट को कैप्टन बनाना चाहिए और हाँ। सैमसन को बोलना चाहिए कि मैं छोड़ता हूँ, यू हैंडल। डेफिनेटली ही इज अ स्टील। आई थिंक ट्रेंट बोल्ट और शिमरॉन हेटमायर प्लेइंग 11 में इज अ स्टील, एंड आई थिंक दोनों मैच विनर है। और मेरे ख्याल से 2 या 3 मैच तो ईयर मार्क कर ही लो ना कि वो दोनों बंदे 2-3 मैच तो निकाल देंगे। सो इट्स अ गुड साइड ओवरऑल। सो ओके, लेट्स कम टू द अपने स्कोर्स। I'll start again. मेरे ख्याल से एज अ साइड अगेन मैनी पोजीशंस पे दे हैव
alternate options. So I'll give them 8 out of 10. I think they're looking good on paper. Me as well. मैं भी 8 out of 10. 7 out of 10. मतलब यार मैं बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है यार ये नहीं, मैं मैं सैमसन के कैप्टेंसी के नंबर काटूंगा। मुझे उसकी लीडरशिप पे उतना यकीन नहीं है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट बैट्समैन, बट कैप्टन Yeah. नहीं है वो। has to prove as a leader. Yeah, Has I to think prove, eight, yeah. eight, बहुत से बंदे हैं यार इस बार। 8 for me too.